morning students. Welcome to our science class. I hope you all are fit and fine. In today's lecture, we will study one new lesson number, that is lesson number 2, My Body. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? My Body. Students, in your previous classes you have studied about your body. So our body is made up of different organs. Our body is made up of different organs. These organs performs different function. ये organs जो है different वो अपना अलग different work करते हैं. जैसे कि eyes है, so the eyes work क्या है eyes का? To see. Okay? Hands का to write. Okay, so our different organs have different functions to do. Okay, so our body is a living machine. Yes. Okay, now these organs are divided into two parts. ये organs two parts में divided हैं. So which are they? First is internal organ and second is external organ. Now students, what is internal and what is external? It is given in your book on page number 190 that the parts that are on the outer side of the body. Body के outside जो भी parts हैं, such parts are called external organs, and those organs which are inside our body are called internal organs. So students, can you name some organs which are internal and which are external? Okay, let's see. Which are internal? Internal organs are such that we cannot see. They are inside in our body. So which are they? They are stomach, okay, kidney, heart, brain. These are organs which are inside our body, so these are called internal organs which we cannot see. Okay, now external organs. So students, can you name some external organs? Which are external, which we see, which are outside in our body? Okay, which are the outside parts of our body? Which are they? These. This is a hand. So hand is an external organ, okay. Then legs, eyes, arms. Okay, so many. Okay, I have written only 4 full names, but there are many organs. Try to write it 2-3 more. Okay, now next, these different organs. Now these different organs comes together. Now this what happened? हमने देखा कि external organs ये, internal organs ये. But now what happened? Our body is a living machine. So machine requires some important functions to be performed. So to perform that functions, these organs combine together. They come together to perform a common function. जो organs एक साथ ग्रुप होती है, वो क्यों ग्रुप होती है? ताकि वो एक प्रॉपर एक कॉमन फंक्शन जिसका वर्क थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, वो एक ग्रुप बनाते हैं. क्यों ग्रुप बनाते हैं? टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ओके, सो दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो ये ऑर्गन्स का ग्रुप बना, दैट वर्क्स टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ओके, ऑर्गन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ different organs that perform a common function together. Okay, so this is called organ system. Okay, now how many organ systems are there in our body and how do they perform? In today's video we will study this organ system, which are there and how it took place in our body and how they are functioning. Okay, first is
digestive system. Okay. Second one is, which is second system? Second system is respiratory system. Respiratory system. Okay. Now third system is circulatory system. Fourth system is muscular system. Okay, students. Now fifth one is nervous system. And sixth, which is sixth system, students, can you name it? Digestive system, respiratory, circulatory, muscular system, then nervous system. Sixth is, yes, anyone? Excretory system. What system is skeletal system. So students, these are 7 systems. First one is digestive system, second respiratory system, third circulatory system, muscular system, nervous system, excretory system and skeletal system. These are 7 systems. Okay. First of all, एक जो system है वो different organs का group बना के एक system बनी है. Okay. So now students, in today's lecture we will learn what is respiratory system and second what is circulatory system. Let's go through it. Respiratory system. In respiratory system consists of nose, windpipes and lungs. Here you can see this is our nose. This is windpipe and these are 2 lungs. Now, how this process took place in respiratory system, there are only 3 organs we have to study. How it works, okay? Nose, windpipes and these 2 lungs. How the respiratory system works with these all organs. In today's lecture we will learn this, okay? Now, respiratory system. Respiratory system is made up of nose, windpipe and 2 lungs. Here you can see the image. The nose, through which we inhale the air. It passes through the windpipe and goes into the lungs. Okay students, now let us study this all in detail. Okay, nose, the taking in and giving out of air. एयर को इनहेल करना एंड उसको गिविंग आउट एक्सहेल करना. इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर फ्रॉम द नोज is called breathing. What it is called? Breathing. The inhale and exhale of the air from the nose is called breathing. The hair and the sticky liquid called the mucus. The hair and the sticky liquid जिसको हम बोलते हैं mucus in the nose filter out the dust particles. What happens students? nose में hair और उसके sticky liquid होता है. वो क्या करता है? जो हम air inhale
अंदर लेके जा रहे हैं उस एयर को फिल्टर करता है, ओके, डस्ट पार्टिकल्स से, ओके, सो ताकि डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में अंदर ना जाए, ओके। नाउ फ्रॉम द नोज, आप देख सकते हो, फ्रॉम द नोज द एयर एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। नोज से सीधी एयर कहाँ आती है? एक लॉन्ग ट्यूब, पाइप जैसा है, उसमें एयर पास होती है। दिस पाइप इज कॉल्ड विंड पाइप। What it is called? Windpipe. Okay. Now from the windpipe the air enters the lungs. ये windpipe है, उसके थ्रू एयर कहाँ हो रही है एंटर? हमारे लंग्स में। क्लियर स्टूडेंट? चलो नाउ फर्दर प्रोसेस। आफ्टर द एयर एंटर्स in the lungs, what happened? Let's study. Your body has 2 lungs. हमारी बॉडी में कितने lungs होते हैं? 2, which are inside the chest part. They are located, कहाँ होते हैं lungs हमारी बॉडी में? Chest region है उसके inside. The air you breathe in feels inside the lung. जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं वो कहाँ जाती है? लंग्स को फील करती है, भरती है, ओके। द ऑक्सीजन इन द एयर इन द लंग्स पासिस इनटू द ब्लड। जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन है लंग्स में, देन इट विल पास दिस ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है, लंग्स में गया है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? It passes into the blood, and the carbon dioxide in the blood passes into the air. क्या होती है प्रोसेस? जो ऑक्सीजन हम लोग इन एयर इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन पास होता है लंग्स में, वो ऑक्सीजन कहाँ होता है? डायरेक्ट पास ब्लड में, ओके। सो ब्लड में दूसरा कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कहाँ आता है? ब्लड में से डायरेक्ट एयर में आता है। द एयर यू ब्रीथ आउट, जो हम एयर बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट, एक्सेल करते हैं हमारी बॉडी से, उसमें क्या होता है? इट कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। हम जो इनहेल श्वास लेते हैं तब हम लोग का ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम वो एयर ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, ओके, तो हम बॉडी में से क्या निकाल रहे हैं? कौन सी एयर आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द बॉडी। ऑक्सीजन बॉडी यूज करती है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट। वेस्ट है, वो हमारी बॉडी में से रिमूव ही हो जाए, ओके, एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ऑक्सीजन बॉडी यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए क्या है? वेस्ट है, और वेस्ट हमेशा रिमूव होता है, उसको निकाल देना चाहिए, तो वो बॉडी में से रिमूव हो जाता है, ओके। नाउ लेट्स सी हियर 2 डायग्राम्स आर गिवन, लेट्स सी इट व्हाट इट इज। सिट स्टिल ऑन अ चेयर एंड प्लेस योर palm on your chest. Does your chest go up and down all the time? Why? Students, it is an activity. Try to do it just now. अभी हम रीड कर रहे हैं और अभी आपको ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है, ओके। चलो चेयर पे बैठ जाओ और अपने हैंड्स कहाँ रखो? चेस्ट पे रखो, ओके। नाउ व्हाट हैपन? लेट्स सी। व्हेन यू ब्रीथ इन, आप जब श्वास लेते हो, ब्रीथ इन करते हो, द एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। एयर कहाँ आती है? लंग्स में। द लंग्स बिकम बिग एंड द चेस्ट मूव्स आउटवर्ड। चलो स्टूडेंट्स करो, तो चेस्ट पे हाथ रखो एंड ब्रीथ इन करो, ओके। तो जैसे ही आप श्वास लोगे तो आपका क्या होगा? लंग्स बिग होगा और चेस्ट मूव्स आउटवर्ड, ओके। लेट्स डू इट। देखो आपकी चेस्ट बाहर आई, ओके, थोड़ी बाहर आउटवर्ड साइड आई, ओके। देन द एयर यू ब्रीथ इन हैज मोर ऑक्सीजन। क्यों ऐसा होता है? जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। नाउ सेम,
व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब हम एयर बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, एयर कम्स आउट ऑफ द लंग्स, एयर हमारे लंग्स में से बाहर आ जाती है. सो द लंग्स बिकम स्मॉल एंड द चेस्ट मूव्स इनवर्ड. द एयर यू ब्रीथ आउट, जो हम बाहर निकालते हैं, एयर एक्सेल करते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, जो हम एयर ब्रीथ इन करते हैं, इट कंटेन्स ऑक्सीजन. जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, नाउ आई होप द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्लियर टू यू. Third system is circulatory system. The word itself suggests circulatory means circulation होगा. किस चीज का circulation होता है बॉडी में? Blood का. Okay? So in circulatory system it consists of the heart and the blood vessels that makes up the circulatory system. तो circulatory system में हम क्या पढ़ेंगे? The structure of the heart and the blood vessel, how they combine together and how the circulatory system works together. Let's study this from the book. Now, circulatory system. The heart and blood vessels make up the circulatory system. Circulatory system किससे बनती है? हमारे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स से बनती है. ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स यूजफुल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है? इट ट्रांसपोर्ट करती है. क्या ट्रांसपोर्ट करती है? यूजफुल सब्सटेंस पूरी बॉडी में. जिधर भी बॉडी में जिस पार्ट में जो यूजफुल सब्सटेंस हमें चाहिए होता है, वो किससे पास होता है? बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट. नाउ, blood is the liquid through which substance are transported by the circulatory system. हमने अभी पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, मैं गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो आई नीड अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट दैट. ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो सब्सटेंस हमें एक पार्ट में से दूसरे पार्ट तक पहुँचाने हैं, वो ट्रांसपोर्ट तो हो जाएंगे, बट इट विल नीड अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट. ओके, तो द मीडियम इज द ब्लड. क्या है मीडियम? ब्लड है, जो एक सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? ब्लड इज द लिक्विड थ्रू विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. Blood is red in color, we all know. It contains a large amount of water, so it flows in blood vessels. Blood है वो क्यों फ्लो होता है? बिकॉज उसमें वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, सो इट फ्लोज इन द ब्लड वेसल. आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस डायग्राम, blood flows through the blood vessel. It is the blood vessel through which the blood is flowing. Okay, chalo, let's see further. Now, heart. Okay, heart is a muscular organ. Heart कैसी organ है? It is a muscular organ. It has 4 chambers. It works like a pump all the time. हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? It is a heart. It is a heart. हार्ट में क्या होता है? 4 chambers are there in our heart. It works like a pump all the time and sends blood to the whole body. ये जो 4 chambers है वो एज अ पंपिंग के जैसा ऐसे पंप होता है. ठीक है, वो पंप क्यों होता है? ताकि इट विल सेंड ब्लड टू द होल बॉडी.
द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट मेक्स द साउंड। जब यो पंपिंग होती है हार्ट की, ऐसे वो क्यों होती है? टू सेंड द ब्लड टू द होल पार्ट, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो, उसके लिए हार्ट की पंपिंग होती है। ओके, जो भी ये पंपिंग एक्शन होती है हार्ट की, एट दैट टाइम इट विल मेक द साउंड। कौन सा साउंड होता है? लप थप लप थप लप थप, ऐसा साउंड होता है। ओके, चलो नाउ ब्लड वेसल्स। नाउ ब्लड वेसल्स। द ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स। ब्लड वेसल्स क्या है? थिन ट्यूब्स फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। Okay, here we can see the diagram of the circulatory system. यहाँ पे आपको दिखाया गया हार्ट है। हार्ट में कितने 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अप and 2 at the down. 4 chambers are there which allows the blood to pass. ओके, वो ब्लड पास करते हैं। आप जो ये देख सकते हो ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में होती है ताकि हर पार्ट को ब्लड मिल सके। हमने अभी देखा कि ब्लड वेसल का क्या काम है? ब्लड वेसल का ये काम है कि जो हार्ट से हम ब्लड मिल रहा है वो बॉडी के हर पार्ट में वो ब्लड फ्लो हो। ओके, चलो लेट्स स्टडी नाउ। द ब्लड flows through the blood vessels all the time. हर टाइम वो ब्लड कहाँ से फ्लो होता है? ये ब्लड वेसल्स में। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितनी टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं? 2 टाइप्स। द ब्लड वेसल्स इन विच blood flows from the heart to every part of the body are called arteries. Here you can see, आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स 2 तरह के, ब्लू और आपको रेड में दिखेंगे। ठीक है, तो हार्ट की 2 वेज हैं। ब्लड वो पास भी करता है और ब्लड लेता भी है। ओके, सो जब ये ब्लड हार्ट में से फ्लो होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं। ओके, जो ये ब्लड पूरे पार्ट्स में लेके जाते हैं वो कौन सी होती है? ब्लड वेसल्स आर्टरीज होती है। कौन सी होती है? आर्टरीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। द ब्लड वेसल्स इन विच ब्लड फ्लोज, ऐसे ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो होता है कहाँ से? हार्ट से बॉडी के हर पार्ट तक, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। Okay, the oxygen rich blood from lungs flow to the heart. Okay, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है ब्लड में वो कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। कहाँ से? लंग्स से वो सीधा हार्ट तक जाता है। और क्या होता है? देन हार्ट पंप करता है। हार्ट पंप्स इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। ओके, सो आर्टरीज, which type of blood the arteries contain? So arteries contain the blood which contains oxygen. Oxygen contained blood हार्ट में से हर बॉडी पार्ट तक जाता है और वो कौन लेके जाता है? आर्टरीज। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अभी ऐसा हमने 2 पार्ट्स पढ़े, 2 पार्ट्स में एक हमने देख लिया आर्टरीज। नाउ वी विल लर्न सेकेंड, the blood vessels in which blood from every part of the body flows to the heart. अभी देखो ये ब्लड वेसल 2 वे प्रोसेस है। एक तो लंग्स में से हार्ट तक जाता है प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन होता है। सेकंड, जो हार्ट जब पंप होता है तब जो ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड है वो हार्ट कहाँ लेके जाता है? बॉडी के हर पार्ट में वो फ्लो होता है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड तो फ्लो हो गया पूरे बॉडी पार्ट्स में। अभी ऐसा होगा ना, ऐसा भी ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। सो वो ब्लड फिर से कहाँ जाएगा? हार्ट में। तो हार्ट से एक जो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाते हैं ब्लड वेसल, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। एंड
हर बॉडी पार्ट्स में से जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो कहाँ आता है, हार्ट में रिटर्न आता है। ठीक है, तो वो कौन से कंटेन करती है, वो कंटेन करती है वेन्स। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज, आई होप इट इज क्लियर टू यू। द ब्लड वेसल्स, ऐसे ब्लड वेसल्स इन विच ब्लड, हर एक बॉडी पार्ट में से ब्लड कहाँ जाता है, फ्लो कहाँ होता है, हार्ट में। ओके, आर कॉल्ड वेन्स। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज वेस्ट बाय द बॉडी passes into blood and flows to the heart in the veins। जो वेन्स के थ्रू हार्ट तक ब्लड जाता है उसमें जनरली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए वेस्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम द हार्ट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड गोज इनटू द लंग्स। क्या होता है, फ्रॉम द हार्ट, हार्ट में से जो वेन्स ब्लड लेके आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो हार्ट में आया है वेन्स के थ्रू, वो डायरेक्ट फिर कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू दिस कैचअप एक्सरसाइज, हाउ द ब्रीथ इन and breathe out process goes in a sequence. Okay, here you breathe in air through the, आप breathe in कहाँ से करते हो, air की nose से, through the nose. Okay, here the dash and dash in the dash filter out dash particles। जो हम air breathe in करते हैं वो filter कौन करता है, yes, the hair एंड मकस, जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारे नोज में। ओके, फिल्टर आउट, क्या फिल्टर आउट करते हैं, किसको बाहर निकाल, डस्ट पार्टिकल्स को। क्लियर, देन व्हाट हैपेंड, दिस एयर पासिस थ्रू दिस पाइप इज कॉल्ड विंड पाइप। सो द डैश यू ब्रीथ, हम क्या ब्रीथ कर रहे हैं, एयर। द एयर यू ब्रीथ इन इज रिच इन, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं नोज से, अभी विंड पाइप से ओके जाएगी, वो एयर में क्या कंटेन है, इट इज रिच इन ऑक्सीजन। ओके, उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, हम क्या इनहेल करते हैं एयर में, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। ओके, इट गोज डाउन द विंड पाइप, कहाँ जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। ओके, विंड पाइप में, देन एंटर्स द, विंड पाइप के थ्रू किस में एंट्री लेगा, वो हमारे लंग्स में। क्लियर, नाउ इन द लंग्स, लंग्स में क्या होगा, यस, इन द लंग्स द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर के साथ जो ऑक्सीजन गया है हमारे लंग्स में, वो दी ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एंटर्स द ब्लड, वो कहाँ जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होगा। देन ये ब्लड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ जाएगा, दिस द ऑक्सीजन, ओके, द ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, पहले लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन वाली एयर आई। ओके, उस एयर में से ये ऑक्सीजन निकल के हमारे ब्लड के साथ हुआ। ओके, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ। अभी ये जो ब्लड है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फ्रॉम द लंग्स इट फ्लोज इनटू अवर हार्ट, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में। ओके, देन द हार्ट प्रोसेस स्टार्ट्स, क्या होती है हार्ट की प्रोसेस, पंप करना। सो द हार्ट पंप करता है इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, अभी वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जब हार्ट पंप होता है ऐसे, तब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाता है। और ये हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट तक कौन पहुँचाता है, आर्टरीज। कौन, आर्टरीज, जो कि क्या है, ब्लड वेसल है। ओके, नाउ द डैश सेंड्स डैश रीच ब्लड, कौन सेंड करता है, द हार्ट
sends carbon dioxide reach blood to the lungs now the heart sends carbon dioxide reach blood to the lungs अभी क्या करता है अभी प्रोसेस उल्टी हो रही है अभी हर एक पार्ट में से बॉडी के हर पार्ट में से जो ब्लड रिटर्न आ रहा है हार्ट के पास उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट कहाँ सेंड करता है लंग्स को नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड from the body enters the blood in the lungs and is sent out of the lungs through the nose. ओके जो ये हार्ट रिटर्न आता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिटर्न भेजता है लंग्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ओके जो कि बॉडी में से रिटर्न आता है वो ब्लड कहाँ जाता है लंग्स में और लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ भेज देते हैं नोज से और वो हम एक्सहेल कर देते हैं ओके स्टूडेंट्स दिस वाज योर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर So students, I hope now the respiratory system and circulatory system both are clear to you. Okay students, go through it and try to solve the question answers related to this both system from your textbook. Okay students, till that, bye and take care.